Good evening, students. Today we will study our chapter 16, and the name of our chapter is light. In this chapter, we will study various facts related to light, like reflection of light, various things for which light is dependent, like how image. We will discuss about the image formation. Okay, we will discuss about our eyes. We will discuss about various angles of light, various facts or terms related to light in detail we are going to study in this chapter. Okay, the use of light in our day-to-day life. Okay, so now first one is reflection. So what is reflection? Generally, reflection, it is a phenomena when a ray of light falls on a surface, then that ray of light gets reflected at an certain angle through that surface. After when suppose this is a ray of light. Okay, suppose this is a ray of light, and when it is a surface, so when ray of light will uh, fall in this surface, so at after striking on the surface, it will go in a certain direction, so that deviation of light after striking on the reflection surface, it is known as reflections. Okay, so due to reflections only we are able to see various types of objects, because when a light falls on non-luminous objects, you have studied in your junior classes, so it is not needed to elaborate here. So generally non-luminous objects which do not emit light, so when ray of light falls on non-luminous objects, so what happens, the ray of light gets deviated at different angles. So due to the deviations, the reflection of light is generated, and due to reflection of light, the image of that object is formed in our eyes, and that when reflection reaches into our eyes, we are able to see that objects. Okay, so this is reflection. Next, now the plane mirror represents a reflecting surface. The light ray striking the reflecting surface is called incident ray. Now, so when a reflection of light takes place, there are three things which are important. That is, one is incident ray, means the ray which is striking. Okay, that is incident ray, and after striking the reflected surface or plane, when that incident ray reflects it at an angle, that ray which is after reflection, means after striking on the uh, surface which has been deviated at a certain angle, that ray is called uh, reflected ray, and where the incident ray is striking on the surface, that point is known as point of incident. Okay, so generally we can say that when a ray of light strikes uh, to a surface, then that striking ray is known as incident ray, and that incident ray where it strikes on the surface, that point is known as point of incidence. And when after the striking of the incident ray in the reflection surface, that incident ray gets reflected, that ray is known as reflected ray. Okay, so this is the things related to the incident ray. So for example you can एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जब जो सनलाइट है वो सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ के लिए, तो जो सन की रेस है वो अर्थ की सॉरी वो क्या है, इंसिडेंट रे है, और अर्थ का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जहाँ पे सन की रे अर्थ के सरफेस पे टकराएंगी, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और सन की रे अर्थ की उसमें टकराने के बाद जिस एंगल से डेविएट हो जाएंगी अलग अलग एंगल से, तो अर्थ के सरफेस में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जिस एंगल से डेविएट होंगी, तो जो डेविएटेड रेस होंगी वही क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रेस कहलाती है। सो नाउ let us study laws of reflection. So there are two laws of reflections. Okay, so when a light reflects, the two laws acts, and that are key, the angle of incidence is always equals to angle of reflection. That means uh, through at which angle the incident ray strikes the surface, at the same angle
the reflected ray will go. That means कि in your book you can see that the figure कि जब इंसिडेंट रे जब जिस एंगल से प्लेन पे आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल से डेविएट होगी, ठीक। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे जब हम एक क्या परपेंडिकुलर डालेंगे जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जो परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है, परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। फिर और जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मींस जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन होगा जहाँ पे इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक हो रही है, ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा प्लेन जो जहाँ से इंसिडेंट रे हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है और जो हमने नॉर्मल खींचा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये तीनों चीजें हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, अलग अलग प्लेन पे नहीं, तभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन में ये भी देखा गया है, इफ द इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर then the reflected ray will coincide with the incident ray, that is it retraces its path। कि ये चीजें ऑब्जर्व की गई हैं कि यदि हमारा जो मिरर है, मीन्स जो प्लेन मिरर है जिससे हम लोग घर में हमारे यूज होता है, शीशा वगैरह अपना चेहरा देखते हैं, तो यदि इंसिडेंट रे प्लेन मिरर में स्ट्राइक करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो पाथ है वो उसी जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई है उसी पाथ की ओर वो डेविएट हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब यदि किसी प्लेन मिरर में हम इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलरली डालेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी, रिट्रेस कर देता है अपना पाथ। ओके, नेक्स्ट, the angle of if the angle of incidence is 45 degree then the angle between the incident and reflected ray will be 90 degree। कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट मींस इंसिडेंट रे हमारी 45 डिग्री के एंगल से प्लेन मिरर पे आ रही है, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 45 एंगल आई, 45 एंगल आर, सो दैट इज 45 प्लस 45 तो दोनों के बीच का टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, कि मीन्स कहने का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। ओके now to verify the second law of reflection, take another sheet of paper and place it vertically in the path of the reflected ray as shown in the figure, try to get the reflected ray on this sheet, what do you observe। ठीक है, ये सारी चीज़ों यदि आपको जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको वेरीफाई करना है कि वो तीनों एक ही प्लेन पे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप ये वो देख सकते हैं कि जब आप किसी एक सीट ऑफ पेपर पे, मान लो ये सीट ऑफ पेपर है, ठीक है, इस सीट ऑफ पेपर पे आप जो ये जो लाइट है उसको स्ट्राइक करिए, ठीक, और उस पर एक दूसरी शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, उस लाइट को चाहे जिस एंगल से आप स्ट्राइक करिए और आप कोशिश करिए कि जो रिफ्लेक्शन है वो दूसरी शीट ऑफ पेपर बने, तो वो कभी नहीं बनेगा। जो रिफ्लेक्शन होगा अगर इस वाली सीट पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्शन भी इसी सीट पे बनेगा। यदि आप दूसरी सीट ले रहे हैं तो आप किसी भी एंगल से लाइट को डालेंगे दूसरी सीट पे रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल ये सभी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। So this is all about that. Now regular and irregular reflections. What are regular and irregular reflections? So दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, पहला है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड और इसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जनरली ये क्या है, दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जनरली ये क्या रिफ्लेक्शन है, जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो जब इंसिडेंट रे हमारी वो एक डेफिनेट मतलब जब हमारी जो इंसिडेंट रे है एक स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक, तो जब इंसिडेंट रे किसी स्मूथ सरफेस पे, किसी इवन सरफेस पे जो जिसमें जिसमें जो है वो ना हो, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें इरेगुलरिटीज ना हो, ठीक, जिस सरफेस में इरेगुलरिटीज नहीं होंगी वो सरफेस कहलाता है इवन
इवन सरफेस और स्मूथ सरफेस। तो जब इंसिडेंट रे हमारी स्मूथ सरफेस में क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो तब होता क्या है कि वो एक ऑर्डरली मैनर में रिफ्लेक्ट होती, एक ऐसे एंगल से रिफ्लेक्ट होती है जो इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा, एक प्रॉपर एक ऑर्डरली मैनर में रिफ्लेक्ट होती है। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक, उसके बाद जो हमारी जब हमारी इंसिडेंट रे इरेगुलर सरफेस पे, ठीक है, स्ट्राइक करती है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक, जो इंसिडेंट एंगल के इक्वल नहीं होता है, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है, जो लाइट की रे है वो कई जगह में डिफ्यूज होती है, ठीक है, कई जगह में डेविएट होती है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। क्योंकि जब एक इरेगुलर सरफेस पे जिसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, एक अनइवन सरफेस है, उस पर जब हमारी इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक करेगी, व्हेन इट विल स्ट्राइक देन इट विल रिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस वेरिएशंस, थ्रू वेरियस डेविएशंस। so that is why this type of reflection is known as irregular reflection. Okay. Now types of images. Now let us study types of images. So there are two types of images. First one is real image और second one is virtual image. So what is real image? Real image वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये, और उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन इसलिए कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन इट ऑन स्क्रीन बिकॉज व्हेन टू और मोर रेस स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट go to a surface, and after the surface when they reflect they meet at some point with each other. So the image formed after meeting that those rays uh, will be real image. Okay. Or what is virtual image? Ki when two incident rays goes to a surface and after reflection they do not meet each other. Okay. So this type of image which is formed after because of not meeting those incident rays which was coming from object is known as virtual image, and virtual image cannot be obtained on screen. Okay. Now what is plane mirror? So प्लेन मिरर इज मेड अप ऑफ स्मूथ, जनरली जो हमारे घरों में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन अवर होम्स. ओके. इट इज अ फाइन फिल्म ऑफ कंपाउंड ऑफ सिल्वर. जनरली प्लेन मिरर एक ऐसा सब्सटेंस है जो वन साइड से रिफ्लेक्ट करता है, सेकेंड साइड में उसके वाइट वॉश या कोई भी पेंट या कुछ भी चीज पॉलिश्ड होती, वन साइड उसका पॉलिश्ड होता है और वन साइड उसका रिफ्लेक्शन शो करता है, दैट इज नोन एज प्लेन मिरर. ओके. और प्लेन मिरर का वो है कि वेन एवर एनी लाइट फॉल्स ऑन इट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट वेरियस at various points. So generally you all have seen the plane mirror, the mirror from which you see your face, which is in your house, bathroom, everywhere you see the, you can see it at many places this type of mirrors. All these are plane mirror. This you all have, you are all are familiar with the plane mirror, so no need to discuss it and in larger perspective. Now image formed by plane mirror has also has following characteristics. Now let us study how the image formation, what is the nature of image formed by plane mirror. So generally when the image formed by a plane mirror is erect and of same size as the object. ठीक है, कि जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है वो जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज के हमारी इमेज फॉर्म होगी, और ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. ओके. और जो इमेज है, जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो ऐसी लगती है हमें, इट लुक्स लाइक कि वो बहुत उसके पीछे है, ठीक, मिरर के पीछे बनी इस टाइप से प्रतीत होती है. ठीक. और जिस साइड की ऑब्जेक्ट है उस साइज की ही इमेज बनती है. ठीक. और इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल होता है, मैंने कहा था, और उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते उस इमेज को. So this was the nature of image formed by plane mirror. Now reflection of reflected light. Now let us study reflection of reflected light. So what is this? कि जब एक लाइट होती है, ठीक है, मान लो एक इंसिडेंट रे है, वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके स्ट्राइक करी और फिर
उसके स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, वो लाइट किसी एक एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। और मान लो वो रिफ्लेक्टेड रे अगेन उसके आगे कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे जब फर्दर आगे जाके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेगी, तो व्हाट विल हैपन, दैट रिफ्लेक्टेड रे विल अगेन रिफ्लेक्ट, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, गॉट यू, गॉट इट, कि when a ray reflects multiple times, this is known as reflection of reflected light. Okay. In this phenomena generally what happens, आपने जब आप when you have visited the barber shop you will have seen that कि बार बार क्या करता है, मिरर्स को ऐसे पैरेलल रख देता है, तो जिससे आप अपने आगे का भी देख पाते हैं, पीछे का भी देख पाते हैं, ठीक है। तो जनरली उसी कारण से होता है कि जो लाइट्स हैं, व्हेन लाइट्स आर फॉर्म्ड, सो व्हाट हैपेंस कि वन रे जब इस मिरर पे पड़ती है, मिरर ए पे, तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड and that reflected ray act as an incident ray for the plane mirror B. So when that reflected ray strike at plane mirror B, then it again gets reflected. So by this process rays gets reflected many times. Okay, so this is known as reflection or reflection of reflected light. Okay, generally this phenomena is used in a device called periscope. Periscope is a device. Okay, in periscope we use this property. So the designing of periscope is done by this property only, means here on one single ray is reflected multiple times. Okay, एंड दैट इज वाई बिकॉज क्योंकि उसमें मिरर्स ऐसे प्लेस किए जाते हैं कि एक बार जो इंसिडेंट रे है एक वो अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, एक बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पड़ी, फिर देन उससे रिफ्लेक्ट हुई, तो जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो एक्ट करेगी, उसके सामने दूसरा मिरर होता है, जब उससे स्ट्राइक करेगी तो अगेन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं सेम लाइट के, दैट इज वाई इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जनरली ये जब चीज़ें हमें अपने सिर के ऊपर देखनी हो, ठीक है, जनरली जो सबमरीन्स वगैरह हैं, ठीक, क्योंकि वो वाटर के नीचे रहती हैं तो उनको ऊपर का तो दिखता नहीं है, दैट इज वाई सबमरीन्स वगैरह में ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक। तो पेरिस्कोप डिवाइस है जो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ओके, so this is reflection of reflected light. Now this you can see that here. So in this, in the previous diagram you may have seen how a reflected light goes. Now kaleidoscope, what is kaleidoscope, this is also a ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें भी जो हमारा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट का यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मिरर्स हैं, बहुत सारे सेट ऑफ मिरर्स को आपस में 3 या 5, ओके, इस टाइप से, या मान लो जनरली सबसे छोटा 3 मिरर चाहिए, सभी मिरर्स को 60-60 डिग्री के एंगल से ऐसे जोड़ दिया जाता है। 3 मिरर्स हैं ट्रायंगुलर शेप में 60-60 डिग्री से, या 5 मिरर्स हैं तो उनको भी फर्दर उस एंगल से एक डेफिनेट एंगल से तीनों को मिरर्स को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इंक्लाइन कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब उसमें तो जब उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो वो बहुत ही सुंदर चित्रण देता है, ठीक है। कैलेडोस्कोप यू कैन मेक इन होम, टेक 3 प्लेन मिरर्स, ओके, देन पेस्ट दोज 3 मिरर इन द फॉर्म ऑफ a triangle, and while placing those while inclining those mirrors, careful about that all the 3 mirrors should be inclined at equal angle, that is 60-60-60 degree. And when then your kaleidoscope will be ready, then put a piece of paper inside that, put a piece of paper inside that. So after that you will see that multiple images of that object are formed under the kaleidoscope, and it gives a very uh, beautiful glance of that object. Okay, so you can try this at home now. So this is about the kaleidoscope. This is the kaleidoscope. Actually this is round because after placing 3 plane mirrors or 5 plane mirrors, we have gave them a covering of something like cartoon, etc. So it has become a round, and
this is hole from where you can see that this point. From here, if you will see, after placing some object, you will see various image formation, multiple, you can see how a multiple image formation is takes place. Okay, now this is kaleidoscope. Next, sunlight white or colored. Now let us study sunlight white or colored. तो जनरली हम देखते हैं कि सनलाइट क्या होती है, वाइट होती है, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ नॉट द फिनोमिना। ठीक, इट हमें वो वाइट दिखती है, लेकिन जब कभी देखा होगा बरसात में रेनबो फॉर्म होता है, तो वो किस कारण से होता है कि जब वही सनलाइट किसी रिफ्रैक्टेड मीडियम से पास कराई जाती है। ठीक, उसी सनलाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सो a white light is dispersed into 7 colors after diffraction. This phenomena is known as uh, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सो जनरली जो सनलाइट होती है वो वाइट नहीं होती, वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है, और उसके 7 कलर्स हम अलग अलग देख सकते हैं जब हम उस सनलाइट का, उस लाइट का रिफ्रैक्शन कराएं। आफ्टर रिफ्रैक्शन वी कैन ऑब्टेन ऑल द 7 कलर्स विच आर present in that white colored sunlight. Okay, generally these bands of colors are known as Vibgyor, means first one is violet. These are all the short forms of various colors present in that white light which are obtained after refraction. That is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. In this particular way those colors are present. Generally rainbow is the application of this dispersion of light. When sunlight and when in the rainy season, what happens ki in the atmosphere some tiny droplets of water are there in the atmosphere. So when sunlight enters that, those tiny droplets, what happens, it gets refracted, and then it after refracted it is changed into 7 colors, and those 7 colors we can see in the sky, which forms a rainbow. So uh, generally rainbow is the an application of dispersion of light. The sunlight is refracted into 7 colors when the sunlight enters into the tiny droplets which are present in our atmosphere. Okay, so uh, who introduced the phenomena, or who discovered this phenomena? So Sir Isaac Newton discovered this phenomena. ठीक, he was the first man to observe this and mm, bring that phenomena that a white light contains 7 colors. Okay, okay, for this he designed a disk which is called as Newton disk, which is of the size of CD, and that CD he divided into 7 parts, and each part he colored with those 7 colors. Means in one part violet and in another part indigo, with that after that blue, green, yellow, orange, red. In this way he created that disk, and when that disk was revolved, we can see that no color can be seen. Okay, this is known as persistence of vision, because only because that due to the revolution of that CD, what happens, the image formation cannot be done in our retina, because the revolution is so fast that each color, our retina cannot form any image, because when our retina tries to form the image of red color, then before our retina could form the image next color, that is orange, it comes into the uh, it comes into the image formation. So our retina cannot form that image of red color, and after that orange came. So same thing, this keeps going on, and what happens at last, our retina could not capture any color. So generally uh, we हमें ऐसा लगता है कि वो वाइट है. ओके, सो जनरली इट इज़ नॉट वाइट बिकॉज ऑफ फास्ट रिवॉल्यूशन. हमारे इमेज आंखों में वो इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं पाती है. ठीक है, हमारा रेटिना उसको कैप्चर ही नहीं कर पाता है. दैट इज वाई इट लुक्स वाइट. ओके, सो दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग कलर के द्वारा, उसको हमारी आई, आवर आइज कैन नॉट परसिस्ट दैम. दैट इज वाई
This is known as persistence of vision, and it was discovered by Sir Isaac Newton. Okay. Now next is, let us study about the human eye. So nature it is one of the precious gift of nature to us, human eye, because through our eyes we can see the beautiful things around us. We can see everything around us actually. Oh, we can see the beauty of nature, beauty of world, everything with our eyes. So we can say that it is a most beautiful or precious gift of nature. So now let us study how images, what are the parts of human eye, and how the image is formed in the human eye. So let's begin. So in this figure you can see the various parts of a normal human eye. Generally there are many parts like cornea, pupil, iris, lens, retina, macula, optic nerve. All those are main parts of the human eye. Okay, and these all parts help in image formation. So now let us study what are the functioning of all these parts and how a image is formed with the help of these parts. Okay, so generally first one is cornea. So what is cornea? You can see this is cornea. In the figure you can see this is cornea portion. Okay, so generally what is it? It is a thin membrane through which light enters the eye. So whenever light enters the eye, so firstly when light enters our eyes, it has to pass through the thin membrane which is called cornea. Okay, then it forms a transparent bulge on front surface of the eyeball. The eyeball is almost spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर. और उसके बाद इससे जब वो लाइट हमारे कॉर्निया से, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है, पास होती है, तो इसके कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है? आई बॉल होता है, जो कि एक स्फेरिकल शेप होता है. वहां पे उस लाइट का एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बन जाता है, मीन्स आर पार दिखने लगता है हमें. ठीक, ट्रांसपेरेंट हो जाता है. और जो ये स्फेरिकल बल्ज है, कहने का मतलब, आई विल शो यू व्हाट इज स्फेरिकल बल्ज. सो यू कैन सी हियर दिस दिस. ओके, ये क्या है? स्फेरिकल बल्ज है, ये चीज. दिस इज नोन एज स्फेरिकल बल्ज. और इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है. नाउ next is iris. So what is iris? This is iris. Okay, what is this? This is iris. Just behind the cornea is dark muscular structure called the iris. बाहर से भी आप देख सकते हैं, आपकी आंख में जो काला काला होता है, दिखता है जो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है. इट इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है. ठीक है. और लोगों की आंखों का अलग अलग कलर होता है ना. किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की हल्की ग्रेइश होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं. तो वो ड्यू टू द कलर ऑफ इट्स आइरिस. ठीक, जिसका जैसा आइरिस का कलर होगा उसकी आंखें भी वैसी ही होंगी. ओके, तो यदि किसी आंखें की किसी व्यक्ति की आंखें नीली हैं तो दैट मीन्स उसकी आइरिस का कलर नीला, उसकी आंखें नीली नहीं है. इस जो आइरिस, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये राउंड कलर में, वो क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है. तो उसके कलर के कारण ही उसकी आंखें हमें डिफरेंट कलर की दिखती हैं. जिस कलर का आइरिस होगा उसकी आंखें हमें उस कलर की दिखेंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्यूपिल. सो व्हाट इज प्यूपिल? ये है, देखो प्यूपिल, ये आइरिस है जो आपको दिख रहा है. जो आइरिस के अंदर एक छोटा सा डॉट होता है, दैट इज नोन एज प्यूपिल. ओके, आइरिस के अंदर जो, इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल. एक प्रकार छोटा सा डॉट टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कह सकते हैं इट इज द ओपनिंग ऑफ आइरिस. सो दिस इज नोन एज प्यूपिल. सो आई विल मार्क इन द फिगर व्हाट इज प्यूपिल. सो यू कैन सी, एक्चुअली ये आइरिस है हमारा पूरा. एंड इन द आइरिस जो ये आपको ये ब्लैक ओपनिंग दिख रही है ना, ये यहाँ मेरा देखो स्ट्रक्चर बना रहा है, ये जो ब्लैक ओपनिंग है, दिस इज व्हाट प्यूपिल. ओके, so what happens, what is the functioning of pupil? Ki pupil allows the light which is has entered through the cornea to go into the eye. Okay, now uh,
let us move eye lens. What are eye lens? So आई लेंस आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, और आई लेंस वो पार्ट होते हैं जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो प्यूपल के पीछे होता है, ठीक है। आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। तो जो हमारी आईज में आई लेंस वाला जो पार्ट होता है वो एक प्रकार के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ओके, और जो कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल होता है हमारी आंख में, ठीक है। द आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय सिलेरी मसल। जो आई लेंस हमारी आंखों में, तो जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ होता है और अपनी पोजीशनिंग में रहता है, ठीक है। Ciliary muscles help in changing the focal length of the eye lens to see far and near objects clearly। और इस सिलेरली जो सिलेरी मसल्स हैं वो मसल्स ही हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमें हमारे इमेज फॉर्मेशन में। जो फोकल लेंथ है आई लेंस की उनको चेंज करने में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डिस्पर्शन से ही हमारा आई लेंस छोटा बड़ा हो पाता, फोकल लेंथ चेंज हो पाती है, इसलिए हमें पास और दूर की चीज़ें देखने में अपने हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना इज दैट पार्ट ऑफ द आई जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। द इनसाइड सरफेस ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। जो आई बॉल के अंदर का जो भाग है, उल्टा वाला जो भाग है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रेटिना। तो यहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। जो आई लेंस पे जो लाइट पड़ी है वो फोकस होके रेटिना पे जाके पड़ती है, और उसके बाद रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होता है, इसीलिए, ठीक है। और रेटिना पे ही हमारे नंबर ऑफ नर्व सेल्स होती हैं। फिर रेटिना में जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो वो इमेज हमारे नर्व सेल्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है। फिर ब्रेन उसको रिसीव करता है और हमें पता चलता है कि हमने क्या इमेज फॉर्म हुई, हमने क्या देखा। दिस इज हाउ वी कैन सी, ठीक है। आंखों में क्या होता है, लाइट एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू, ठीक। कॉर्निया के बाद जब होते हुए अंदर जाती है, जो आई लेंस हमारे होते हैं वैक्स लेंस होते हैं, इनके थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट जब रेटिना पे फोकस करती है तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक, उस लाइट का। और इमेज फॉर्मेशन होने के बाद रेटिना में प्रेजेंट नर्वस नर्व सेल से क्या होता है, जो नर्व वो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं कि दिस टाइप ऑफ इमेज हैज बीन फॉर्म्ड, एंड फिर हमारा ब्रेन उसको रिसीव करता है और डिटरमाइन करता है, ठीक। नाउ कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट वाइल रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। जो आंखों के एक पार्ट है कोन्स, जब हमारी लाइट कोई हमारी आंखों में ब्राइट लाइट पड़ती है तो उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, और जब डिम लाइट होती है तो उसके लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम डिम लाइट में भी देख पाते हैं और ब्राइट लाइट में भी देख पाते हैं, तो दैट आर ड्यू टू कोन्स एंड रॉड्स विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर आई, ठीक है। कोन्स आर एबल टू डिटेक्ट कलर्स एंड आर फ्यूअर इन नंबर्स देन रॉड्स, ठीक। हमारी आइस में जो कोन्स होते हैं इनकी संख्या रॉड्स की संख्या की अपेक्षाकृत कम होती हैं, और हमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखती हैं, ठीक है, वो ड्यू टू कोन्स है, ओके। और रोड्स कैन नॉट परसीव कलर, रोड्स जो होते हैं वो कलर्स को परसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई वी कैन नॉट सी कलर इन मून लाइट और डिम लाइट एंड एवरीथिंग अपीयर्स टू बी शेड्स ऑफ ग्रे। इसलिए होता है जब डिम लाइट होती है तो हमारे रोड्स वर्क करते हैं, तो इसलिए हम डिम लाइट में या मून लाइट में कलर्स को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि कलर्स को पहचानने का काम हमारे कोन्स करते हैं, और कोन्स केवल जब ब्राइट लाइट होती है तभी सेंस कर पाते हैं, तभी वर्क करते हैं। दैट इज वाई कम रोशनी में या अंधेरे में हमें चीज़ों का कलर समझ नहीं आता, सब चीज़ें एक कलर की ही दिखती हैं, क्योंकि जो हमारे रॉड्स होते हैं, ठीक, वो फंक्शन करते हैं डिम लाइट में, और उनके पास ये कलर्स को सेंस करने की सेंसिटिविटी नहीं होती है। दैट इज वाई we cannot see we cannot detect the various colors in the dim light or moonlight, okay, so keep this in mind. So this is the how image is formed. When light falls on rods and cones, the signals are transmitted through the optic nerve to the brain, which produces the signals and allow us to see. तो जब जो लाइट हमारे रॉड्स एंड कोन्स में पड़ती हैं तो उनके वो सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर हम ब्रेन को जब सिग्नल मिल जाता है तो उसके बाद हम चीज़ों को देख पाते हैं। जब वो इमेज ब्रेन में हमारे उस जो सिग्नल है ब्रेन हमारा रिसीव कर लेता है तो तभी हम देख पाते हैं, ठीक है।
दिस इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड। और जो रेटिना में हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है वो 1 सेकेंड का 1/16 टाइम, उतनी देर तक हमारी रेटिना में इमेज बनी रह सकती है। हम किसी चीज़ को देखा तो सेकेंड को 16 पार्ट्स में डिवाइड करो तो उतने टाइम के लिए हमारे रेटिना में इमेज बनती है, मतलब बहुत बहुत वेरी लो टाइम के लिए, उसी में हमारा ब्रेन उसको परसिस्ट कर लेता है और वो चीज़ हमारे दिमाग में बस जाती है। तो रेटिना में जनरली वो इमेज नहीं रह जाती कि हमारे आंखों में कहते हैं बस जाता है, आंखों में नहीं बसता है कुछ। जब रेटिना में हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है तो व्हाट हैपेंस, वो इमेज फॉर्मेशन सिग्नल के रूप में हमारे ब्रेन को मिल गया। तो जो हमारी रेटिना में इमेज फॉर्मेशन हुआ वो इमेज हमारे ब्रेन ने रिसीव कर लिया, तो वो ब्रेन में सेव हो जाता है, आंख में सेव नहीं होता। कहते हैं वो उसका चित्र मेरी आंखों में बस गया है, नहीं, आंखों में कुछ नहीं बसता है, वो ब्रेन में बसता है। ठीक है, बॉडी में जितनी फंक्शन होती है वो ब्रेन के माध्यम से होती है। ठीक, तो आंखों में केवल इमेज फॉर्मेशन होता है और वो भी 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए, इतने कम समय के लिए, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं होता, सेकेंड के 16वें भाग इतना जितने टाइम के लिए इमेज रहती है। और उसी उतने ही टाइम में ब्रेन हमारा उसको क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो वो हमारे ब्रेन में रहती है क्योंकि ब्रेन की मेमोरी बहुत तेज है। रेटिना में तो इमेज बनी और वहां से वाइप्ड आउट हो गई, उतनी देर में यदि ब्रेन ने रिसीव कर लिया तो उसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। और ऐसी क्या होती है कि जो मैसेज हमारा ब्रेन रिसीव नहीं कर पाता है, ठीक है, या जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं दे पाती हैं, तो रेटिना में इमेज बन के क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है 1/16 सेकेंड में। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, की हमारी आंखें उसको परसिस्ट ही नहीं कर पाती, तो हमारी आंखें नहीं, हमारा ब्रेन उनको परसिस्ट नहीं कर पाता। ओके, सो दिस इज हाउ the working of image formation goes. Now let's move, what is blind spot। तो एक रेटिना जो रॉड और कोन से जो कवर होता है, रेटिना का जो पूरा एरिया होता है वो रॉड और कोन से कवर्ड होता है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट होता है हमारी आंख में, आप अपने फिगर में देख सकते हो, जहाँ पे जो रेटिना है ऑप्टिक नर्व के साथ मिलता है, ठीक है। तो जहाँ पे रेटिना हमारा ऑप्टिक नर्व के साथ मिलता है तो वहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं होती हैं जो हो रही चीज़ों को सेंस कर सकें। तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो सेंस ही नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पे कोई सेंस सेल होती ही नहीं है, ठीक, तो ब्रेन को मैसेज मिल ही नहीं पाता है। तो वहाँ पे इमेज जो फॉर्म होती है उन इमेजों को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वहाँ पे क्या इमेज फॉर्म होती हैं, वो ब्रेन के द्वारा परसीव ही नहीं हो पाती हैं, रिसीव्ड ही नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो हमें दिखती नहीं है। और वो पॉइंट क्या है, इसलिए कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, कहलाता है कि मीन्स जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन तो होती है लेकिन उस इमेज फॉर्मेशन को सेंसरी सेल्स के अभाव के कारण हमारा ब्रेन रिसीव नहीं कर पाता है। दैट इज वाई दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ओके, next, working of an eye. Now let us study how an eye works. So first of all, the major functions of light are to allow the right amount of light to pass through different conditions of light to form its image and then to send information about the image to brain. These functions are performed by different parts of the eye. तो जनरली जो हमारी आँख है उसकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट टाइप से होती है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट को अलाउ करना है, ठीक, किस अमाउंट ऑफ लाइट में कैसे एक्ट करना है, कैसे इमेज फॉर्मेशन करना है, ऑल दीज थिंग्स आई हमारी परफॉर्म करती है। सो पूरे कौन सा आई का कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है, लेट अस स्टडी। So the iris controls the amount of light entering the inner part of the eye to ensure the best possible brightness of the image। तो जो हमारा आयरिस होता है, अभी पढ़े ना हमने अलग अलग पार्ट्स कौन क्या होते हैं, तो जो आयरिस होता है ये कंट्रोल करता है कि वो उतनी ही लाइट को ले पाए ताकि जितनी एक अच्छी इमेज फॉर्मेशन के लिए पर्याप्त हो, ना ज़्यादा कि हमारी आंखें खराब हो जाएं, ना कम कि हमारी आंखें उसको देख ही ना पाए, ठीक। तो आयरिस का काम है कि उतनी अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब करना जितनी ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और इसीलिए जब डिम लाइट होती है तो बेटर इमेज फॉर्मेशन के लिए जो आइरिस है हमारी क्या हो जाती है, वाइडन हो जाती है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा हो जाती है, मीन्स हम कहते हैं ना ज़्यादा खुल जाती है ताकि और अमाउंट ऑफ लाइट आ सके और हम बेटर इमेज फॉर्मेशन हो सके, ठीक। सो आइरिस का काम ये है। नाउ लाइट फॉलिंग ऑन द आई गेट्स रिफ्लेक्टेड एज इट पासेस थ्रू द कॉर्निया। और उसके बाद जो आंखों पे हमारी जो लाइट पड़ रही है वो जब कॉर्निया से पास होती है तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक। कॉर्निया के बाद फिर जब लेंस और फ्लूइड्स में जाती है तो वेरियस रिफ्रैक्शंस होता है और उसके बाद
ये तीनों चीजें हैं जो कन्वर्जिंग लेंस के रूप में एक्ट करती हैं, और उसके बाद हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई आई फंक्शन करती है। नाउ नेक्स्ट इज, एंड उसके बाद जो क्या होता है कि दूर की इमेज का फॉर्मेशन, पास की इमेज का फॉर्मेशन, तो उसमें जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं जिन पे हमारे लेंस अटैच्ड होते हैं, तो वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं, जिसके कारण हम, जैसे वो कैमरा होता है ना, तो कैमरे में हम लेंस को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, कभी जूम इन कभी जूम आउट। उसी प्रकार से जो हमारी सिलेरी मसल्स है वो एक्सट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और उसी से फिर जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हमें देखनी होती है वो देख पाते हैं, पास की ऑब्जेक्ट देखनी होती है तो वो देख पाते हैं। सो दिस इज हाउ ऑल दिस वर्क्स। ओके, the process pipe is the focal length of the eyes is changed to ensure the formation of sharp images of the object at different distances is called accommodation। और जो यही चीज है, ये जो प्रोसेस है जिससे हमारी आई क्या करती है, आपस में खुद को एडजस्ट करती है, एकोमोडेट करती है, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के लिए, यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। ओके, ये मीन्स आइज के द्वारा जो अपने आप को अलग अलग टाइप की इमेज फॉर्मेशन के लिए एडजस्ट करना, यही एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल तीसरा, उसके बाद फिर रेटिना के पास बहुत सारे सेंस रिसेप्टर्स होते हैं जो इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना में, उसको कलेक्ट करने के लिए। तो रेटिना पे जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो इन्हीं सेंस रिसेप्टर्स के द्वारा उस इमेज को रिसीव कर लिया जाता है, और उसके बाद ये उसको ब्रेन तक भेजते हैं, और उसके बाद हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, ये इतनी लंबी प्रोसेस है लेकिन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स पे होती है, कीप इन माइंड। नाउ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, तो कितना है कि हमारी एक जो नॉर्मल आंख है वो कितनी दूर की चीजें देख सकती है, ठीक है, कितनी दूर तक की चीजें नहीं देख सकती है, इसके बारे में लीस्ट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की, एक हमारी आंख कितने पास की चीजों को देख सकती है। ज्यादा पास की चीजों को भी हमारी आंखें नहीं देख सकती। अपनी आंख के पास बिल्कुल ऐसे कुछ लगा लो तो क्या आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ऐसा मतलब मान लो ये सपोज मेरे पास अभी मोबाइल है, इस मोबाइल में कुछ मैं स्क्रीन पे देखूं, तो उसको यदि मैं अपनी आंखों के इतने पास ले जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो दैट इज, सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो नॉर्मल आई है उसके लिए जो लीस्ट डिस्टेंस है कि कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी है तो हमारी आंखें उसको नहीं देख पाती हैं। ओके, सो जो लीस्ट डिस्टेंस है आई का, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो सकती है वो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से यदि पास हमारे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन उसका नहीं हो सकता। तो जो जो डिस्टिंक्ट विजन है इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, या कहते हैं इसको नियर पॉइंट्स। व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ आई, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि बिलो द 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमारी आंख इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकती। नाउ कंपाउंड आइज ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की जो कंपाउंड आइज होती है, ठीक है, एनिमल्स की बहुत टाइप्स की आइज होती हैं, लेट अस स्टडी। यस, एनिमल आइज आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन आइज, जो एनिमल्स की जो आइज हैं वो ह्यूमन आइज से डिफरेंट होती हैं। सर्टेन एनिमल्स सच एज डॉग्स एंड कैट्स हैव अ रिफ्लेक्टेड लेयर ऑफ टिश्यू बिहाइंड द रेटिना, जैसे कि कुछ जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, इनके रेटिना के पीछे रिफ्लेक्टिव लेयर होती है। द रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ टिश्यू रिफ्लेक्ट विजुअल लाइट बैक थ्रू द रेटिना हेल्पिंग द एनिमल्स टू सी बेटर इन लो लाइट कंडीशंस। तो यही जो रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ टिश्यू है ये क्या करती है, बार बार उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो जिससे अंधेरे में भी जानवरों को बहुत बेटर विजन दिखता है। लो लाइट कंडीशंस में भी दे कैन सी क्लियरली, इसलिए देखते होंगे अंधेरे में यदि आप निकलते हो कुत्तों को दिख जाता है, वो भौंकने लगते हैं, तो वो इसी कारण से है, ड्यू टू, क्योंकि उनकी रेटिना के पीछे रिफ्लेक्टिव लेयर होती है जो उनको अंधेरे में भी देखने में सहायता करती है। ठीक है, डॉग्स एंड कैट्स कैन नॉट सी कलर्स, दे ओनली सी वेरी पेल शेड्स ऑफ कलर्स। डॉग्स और कैट्स जो होते हैं कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सी द डिफरेंस, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द कलर, कि वेदर इट इज लाइट ब्लैक और रेड और ब्लू, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई बिकॉज उनमें कोन्स नहीं होते हैं। ओके, वो वेरी पेल शेड्स ऑफ कलर्स को ही जान पाते हैं, जनरली ब्लैक एंड वाइट। ओके, so these are about
लाइट, एनिमल्स लाइट। नाउ जो जैसे उल्लू की आंखें हैं वो रात में देख सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो कॉर्निया एंड प्यूपिल है वो बहुत लार्ज होता है। उल्लू की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ना, तो जो उसका कॉर्निया एंड प्यूपिल है वो लार्ज होता है, तो रात में भी वो उसके कॉर्निया प्यूपिल से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है, तो उससे बेटर इमेज फॉर्मेशन होता है, तो वो रात में भी चीज़ों को आसानी से इसलिए देख सकता है। तो इसलिए उल्लू रात में जगता है क्योंकि उसके आइज़ का फॉर्मेशन ऐसा है। तो जो एनिमल्स में आइज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। उल्लू के रेटिना में बहुत सारे रॉड्स होते हैं, ठीक है, और कोन्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक। इसलिए वो रात को ज़्यादा देख पाता है, क्योंकि जो रॉड्स हैं वो रात में ही फंक्शन करते हैं, ठीक। जो कोन्स होते हैं वो दिन में फंक्शन करते हैं, क्योंकि ब्राइट लाइट में कोन्स फंक्शन करते हैं, तो कोन्स उसके पास कम होते हैं, तो वो दिन में इसलिए नहीं देख पाता है, ठीक। और उसके पास रॉड्स, नंबर ऑफ रॉड्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो राइट जो लो लाइट में काम करते हैं, इसलिए ही कैन बेटर सी एट नाइट। इसलिए वो रात को जगता है, क्योंकि वो अपने शिकार को रात में आसानी से देख सकता है और उसका शिकार कर सकता है। दिन में वो देख ही नहीं पाएगा, खुद शिकार बन जाएगा। दैट इज वाई उल्लू दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड, birds such as kites in eagles can see well during the day but not at night। उसी प्रकार जो कुछ पक्षी होते हैं, काइट्स, ईगल्स, ये दिन में देख सकते हैं, रात में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जानवर या पक्षी दिन में एक्टिव रहते हैं उनके पास ज़्यादा कोन्स होते हैं, रॉड्स नहीं होते हैं, रॉड्स कम होते हैं, तो रात में नहीं देख पाते हैं। ये ऑल दिस इस फैक्टर से सबकी आंखें अलग अलग होती हैं, ठीक। उसी प्रकार ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास भी कंपाउंड आइज होती हैं, ठीक, जिनमें थाउजेंड्स ऑफ टाइम छोटे छोटे लेंसेस होते हैं, ठीक है। एक हनी कॉम के पैटर्न, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसी प्रकार उसी पैटर्न में हजारों लेंस होते हैं उनकी आंखों में, ठीक। However, they do not see hundred of copies of the same image at once. Rather, each lens makes up a small part of overall picture, similar to the 30,000 sections, depending upon insect. For example, dragonflies are preying mantises can have up to 30,000 sections. The color perception also varies greatly. Some insects, such as butterflies, can see far from colors than humans, while others see fewer colors. Generally, जो insects होते हैं, they have thousands of lenses together arranged in a honeycomb पैटर्न। सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी इमेज के, किसी लाइट के थाउजेंड रिफ्लेक्शन देखते हैं, नहीं। वो उनका जो प्रत्येक लेंस है, प्रत्येक लेंस जो है वो किसी एक छोटे छोटे सेक्शंस में इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और फिर उन्हीं इमेज ऑफ सेक्शंस ऑफ इमेजेस से फिर एक लार्जर इमेज फॉर्म होती है और दे कैन सी प्रॉपरली। जनरली जो ड्रैगन फ्लाइज वगैरह होती हैं, मक्खियाँ वगैरह, इनके 30,000 सेक्शंस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक। तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग उसको देख सकती हैं, ठीक। जनरली इसलिए होता है ना कि ये मक्खी बैठी हो, इधर पीछे से भी हाथ ले जाओ तो भी उसको दिख जाता है, आगे से भी ले जाओ तो भी दिख जाता है, तो तुरंत उड़ जाती है, क्योंकि उनके आइज का इमेज फॉर्मेशन ऐसा होता है कि वो ग्लोबली देख सकते हैं, ठीक। और उसी प्रकार जो बटरफ्लाइज हैं उनकी आंखें भी ऐसी होती हैं कि वो इवन ह्यूमन से ज़्यादा ही कलर देख सकती हैं, ठीक। हम लोग कम कलर देख पाते हैं, वो हमसे ज़्यादा कलर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी नेचुरल लाइफ यही है कि उनको नेक्टर चाहिए, तो कलरफुल फ्लावर्स चाहिए, तो इसलिए वो बेटर कलर विजन देख पाते हैं। सो सभी जानवरों, इंसेक्ट्स में सब में अलग अलग आइस होती हैं। सो नॉट नीड टू डिस्कस इट at that larger perspective. So let's move ahead. Now let us see defects of vision. So फर्स्ट वन इज मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष, जब हमें पास की चीजें नहीं दिखती हैं, दैट इज नोन एज मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। तो जनरली व्हाट हैपेंस कि जब हमारी आंखें जो होती हैं, हमें पास की चीजें नहीं हम देख पाते हैं, तो इस टाइप की जब हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक, वो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहलाती है। और ये होता क्यों है, ठीक, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी आइज का फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है, तो जिससे हम केवल दूर की चीज़ों को ही क्लैरिफाई कर पाते हैं, पास की चीज़ें हमें धुंधली देखने लगती हैं, कि जो फोकल लेंथ हमारा एक्सटेंड हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक। वो जब पास से चीज़ें हमें देखने के लिए फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा, दूर की चीज़ देखने के लिए हमारे पास ब्रॉडर रेंज होनी चाहिए। तो जब फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो हमें पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, तो इसलिए हमें नहीं दिखता है।
फिर एलोगेशन ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आई बॉल। तो जब हमारी आई बॉल्स का एलोगेशन हो जाता है, फैल जाती हैं, तो इससे हमारी आई बॉल की लेंथ बढ़ जाती है। तो हम पास की चीज़ों को नहीं क्लैरिफाई कर जाते हैं। अब इनके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। मायोपिया को हम कॉनकेव लेंस, मतलब चश्मे जो पहनते हैं उन चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब सबको अलग अलग पावर का चश्मा होता है, तो डिपेंड करता है किसका कितना फोकल लेंथ खराब हुआ है, तो उस फोकल लेंथ के हिसाब से उनको कॉनकेव लेंस लगाए जाते हैं अलग अलग फोकल लेंथ के, और उस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपी और लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि रोग, जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। तो ये क्यों होता है? जनरली ये क्या है कि जब किसी पर्सन को दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, ठीक दूर की चीज वो क्लियरली नहीं देख पाता है, तो जो हमारा जो सिलेरी मसल्स है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं, एक वाइडर रेंज नहीं दे पाती हमारी आंखों को, इस कारण से हम दूर की चीज़ों को देखने में असफल रहते हैं। तो ये जो आंखों की प्रॉब्लम है ये क्या कहलाती है? हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहलाती है। तो इसके होने के कारण क्या है कि आंखों की फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है आई लेंस में। ठीक, दूसरा आई बॉल इसकी छोटी हो जाती है, ठीक है, तो जिससे आई लेंथ की जो साइज है वो भी छोटी हो जाती है। तो हमारी जो आई लेंथ है वो क्या होती है, वो फोकस नहीं हो पाती है, तो हमारी आंखों को देखने के लिए वाइडर रेंज नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम दूर की चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो जनरली एक मैं कॉमन वे में बताऊं कि हमारी आंखें जूम नहीं कर पाती हैं चीज़ों को, जब तक जूम नहीं कर पाएंगे तो दूर की चीज़ें दिखेंगी नहीं क्लियरली। तो इस टाइप के उसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। और इसके करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं सूटेबल फोकल लेंथ के। ओके, नेक्स्ट इज नाउ प्रेस बायोपिया। व्हाट इज प्रेस बायोपिया? कि जब हमारी आंखें ना ही पास की चीजें देख पाती ना ही दूर की चीजें देख पाती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है। और ये किस कारण से होता है? जो हमारी सिलरी मसल जब वीक पड़ पाती हैं तो ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं ना ही वो एक्सट्रैक्ट कर पाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हमें पास की चीजें देखनी होती हैं तब भी हम क्लियरली नहीं देख पाते क्योंकि हमारी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, और दूर की चीजें देखनी होती है तो हमारी सिलरी मसल्स ना ही एक्सट्रैक्ट करती हैं, फैलती हैं। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? आंखों के ऐसे रोग को प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है। और इसके उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस मीन्स जो आधा उसका एक पार्ट कॉनकेव होता है और आधा पार्ट उसका कॉन्वेक्स होता है, तो दोनों लेंस उसमें कंबाइन होते हैं, जिससे हम ये इस दृष्टि को, इस रोग को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें दूर देखना होता है तो हमारे कॉनकेव लेंस, सॉरी, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस सहायता करता है दूर देखने में, और जब हमें पास देना होता है तो हम कॉनकेव लेंस की सहायता से पास में देख सकते हैं। सो इसलिए ऐसे लेंस जो दो कंबाइनिंग कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस से मिलकर बने होते हैं वो बाइफोकल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रेसबायोपिया और उसका करेक्शन। नाउ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? जब हमारी आंखें पुरानी हो जाती हैं तो हमारी आंखों के सामने एक लेयर बन जाती है, ठीक है, फॉगी लेयर, धुंधली लेयर, जिसके कारण हमें दिखना बंद हो जाता है। तो ठीक है, उससे क्यों उस लेयर के कारण, उस मेम्ब्रेन के कारण लाइट हमारे आंखों में अंदर रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है और इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये रोग क्या कहलाता है? कैटरेक्ट कहलाता है, ठीक है। और इसको ठीक कैसे करते हैं? इसको ठीक करते हैं ऑपरेशन के द्वारा। जो नए आर्टिफिशियल लेंस प्लेस कर दिए जाते हैं पुराने की जगह, और फिर हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। तो जैसे देखते होंगे जो हमारे घर में ओल्ड है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम उनकी आंखों को ऑपरेट करके न्यू लेंस उनमें लगवाते हैं, ताकि क्योंकि एक टाइम के बाद, एक ओल्ड एज के बाद जब हमारी आंखें बूढ़ी हो जाती हैं तो व्हाट हैपेंस कि एक जो लेयर फॉर्म हो जाती है जिसके कारण इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो आर्टिफिशियल लेंस लगाने के कारण वापस से वो ठीक हो जाती हैं और बेटर विजन हमें प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन रिलेशन ऑफ टू ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में न्यूट्रिशन का क्या रोल है? तो जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी है तो वो न्यूट्रिशन से ही चलती है, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन से ही एनर्जी मिलती है। तो उसी प्रकार हमारी जब आंखें फंक्शन करती हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आंखें क्या हो जाती हैं? कमजोर होती जाती हैं, उन पे जब जोर पड़ते जाता है
और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर हम अंधे हो जाते हैं। तो जनरली हमारी आइस को 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत डेली पड़ती है। इतनी विटामिन ए अगर आंखों को नहीं मिलती है तो डे बाई डे हमारी आंखें वीक होती जाती हैं। तो हमारी आंखों को हेल्दी रखने के लिए हमें डेली विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। ठीक, और यदि ये हमारी आंखों को नहीं मिलता है तो डे बाई डे हमारी आंखें वीक पड़ते जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए विटामिन ए जो है दूध में पाया जाता है, चीज, टोमेटो, कैरेट, मैंगो, इन सारी चीज़ों में, पालक, इनमें विटामिन ए बहुत पाया जाता है। तो इन्हें हमें अपनी खाने के लिए, ताकि हमारी आंखें मजबूत बनी रहें, स्वस्थ बनी रहें, उसके लिए ये सारी चीज़ें खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी आंखों को पर्याप्त विटामिन ए मिलता रहे और हमारी आंखें वीक ना पड़े। नेक्स्ट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यदि विटामिन ए की कमी है हमारे अंदर तो इसलिए हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी जिसको कहते हैं, दिखना बंद हो जाता। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता है, लो लाइट में। नेक्स्ट इज केयर ऑफ आइस। आंखों की केयर क्यों जरूरी है? तो आप, क्योंकि आंखों की केयर नहीं जरूरी है तो हम अपनी चीज, अगर आंखें हमारी खराब हो गई, हम अंधे पड़ गए, तो क्या होगा? हमें कुछ दिखेगा नहीं, हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब सोचो, सब कुछ काला ही काला दिखेगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि सामने क्या नहीं है क्या नहीं है, तो कितनी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आंखों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें ऐसी डाइट खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए, सी और ई हो। ठीक है, इससे हमारी आंखों की साइट इम्प्रूव होती है। ठीक है, और हमें कैटरेक्ट जो रोग है वो नहीं होता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेट्स, पपाया, ऑरेंजेस या स्प्राउट्स मीन जैसे कि कच्चे चने फुला करके, मूंगफली, मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें, स्प्राउट्स खाने चाहिए। ठीक, हमारी डाइट में, तभी हम अपनी आइज़ को बेटर से केयर कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी वेरियस मेथड। ठीक है, टू लिटिल और टू मच लाइट इज हार्मफुल फॉर आइज। बहुत कम लाइट या बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए जब भी आप आंखों से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो तो हमेशा ध्यान में रखें कि वो एरिया ज़्यादा ब्राइट ना हो कि आंखें आपकी हार्मफुल, आंखों के लिए वो हार्मफुल हो, ना ही आप ज़्यादा डिम लाइट एरिया में वर्क करें, क्योंकि आंखों को उतना ही ज़्यादा, आंखों की मसल्स पे जोर पड़ेगा और आंखों को लिए उतना ज़्यादा खतरा है। इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं तो बोला जाता है बेटर लाइट में पढ़ो, अंधेरे में मत पढ़ो। ठीक है, प्रॉपर लाइट में पढ़ो, ताकि लाइट आंखों पे जोर ना पड़े और हमारी आंखें खराब ना हो। तो जब भी आप आंखों से रिलेटेड वर्क करें तो हमेशा ध्यान रखें कि जो लाइट हो वो ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। ठीक, इसलिए जो, और फिर जो टीवी और कंप्यूटर पर हमें ज़्यादा देर के लिए वर्क नहीं करना चाहिए, ना ही लंबे देर तक हमें टीवी देखना चाहिए, ना ही कंप्यूटर, क्योंकि जो टीवी स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसकी जो रेस निकलती हैं, ठीक, वो हमारे आंखों के लिए हार्मफुल होती है। सो बी केयरफुल। या टीवी या कंप्यूटर पे वर्क करते समय हमें स्पेक्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए। नाउ उसके बाद जब हमारी आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल या कोई चीज़ चली जाए जिससे हमारी आंखों में जो कोई कचरा वचड़ा चला जाए, तो आंखों को ऐसे रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि इससे आंखें हमारी खराब हो सकती है। यदि मान लो कोई कांच का टुकड़ा चला जाए या समथिंग ऐसा कुछ चला जाए जो नुकीला हो, शार्प हो, यदि हम आंखों को रगड़ देंगे तो वो हमारे अंदर के मसल्स को, आंखों की मसल्स को फाड़ सकता है, कट कर सकता है और उससे ब्लीडिंग हो सकती है, हमारी आंख, हम परमानेंटली ब्लाइंड हो सकते हैं। सो जब भी कोई कचरा चला जाए तो उसको या तो किसी रूमाल से, कॉटन क्लॉथ से साफ करें, या पानी से उसको साफ करें। कभी भी रब करके साफ ना करें, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए हार्मफुल हो सकता है। और तब भी यदि पानी से या कपड़े से नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो बेटर है आप किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और आई ड्रॉप या डॉक्टर की सहायता से उस कचड़े को या उस डस्ट को, पार्टिकल को, उसको रिमूव करें। ठीक, कभी भी आंख में चाहे जितना जो कुछ हो, अपनी आंख को ज़्यादा रब मत करें। नेक्स्ट, यूज अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस विथ अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वेन एवर यू आर इन द सन। जब भी आप धूप में बाहर निकलें तो हमेशा ग्लासेस का यूज़ करें, और वो ग्लासेस ध्यान रखें यूवी प्रोटेक्टेड होने चाहिए, जो सन की हार्मफुल रेस से आपको बचाएंगी। ठीक, और आपको ये भी हिदायत दी जाती है कि सन के तरफ कभी डायरेक्टली आप ना देखें, क्योंकि जो सन की लाइट है वो टू मच होती है और हमारी आंखों के लिए
फायदेमंद नहीं है। नाउ जब हम पढ़ रहे हो तो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे पढ़ें, ना चीजें पढ़ रहे हो तो बुक ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा पास हो। ओके, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बुक हो वाइल रीडिंग। ओके, तो उससे भी आंखों की आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है और आवर आइज रिमेन्स हेल्दी। सो इन अ मूविंग बस और इन अ मूविंग ट्रेन या डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम जो मूव करते रहते हैं मूविंग बस में मूविंग ट्रेन में, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हिलते डुलते रहता है, तो हमारी आंखों को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक, इसलिए कभी भी डिम लाइट में या मूविंग बस या मूविंग ट्रेन में मत पढ़ें। सो बाय दिस ऑल दीज मेथड्स यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज वेरी प्रॉपरली।